Assalamualaikum. My name is Abdul Wahab and my registration number is 2020-24. Our topic is adaptive filter. Adaptive filter. What is adaptive filter? Adaptive filter continuously adjusts their filter coefficient based on an optimization algorithm to minimize a certain error. Unlike fixed filter, which have constant coefficient, adaptive filter can change their parameters dynamically in response to change their signal environment. They are used in applications like echo cancellation, equalization, adaptive noise cancellations. बेसिकली एडाप्टिव फिल्टर जो होता है वो कंटिन्यूसली जो है वो फिल्टर को एडजस्ट करता रहता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको एल्गोरिथम को मिनिमाइज करके उसकी एरर्स करेक्शंस एरर को दूर करता है, एरर करेक्शंस करता है. If we discuss unlike fixed filters which have constant coefficient, adaptive filter में हम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं और डायनेमिकली उनके रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, उनके सिग्नल्स का एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है वायनर फिल्टर थ्योरी. वायनर फिल्टर इज अ डिजाइन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट फॉर डिजायर्ड सिग्नल बाय मिनिमाइजिंग द मीन स्क्वायर error between the estimate and the desired signal. It is an optimal filter in the sense of minimizing the mean square error. Assume that the signal and noise are stationary processes with non-spectral characteristics. The Wiener filter provides a closed form solution depend upon their correlations function of the signal and noise. वाइनर फिल्टर थ्योरी जो है वो हमारे पास ठीक है, ये एडाप्टिव फिल्टर में, जिसमें हमारे पास ये है कि वो एक डिज़ायर सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है और उसके स्केयर्स एरर्स को मिनिमाइज करता है, रिमूव करता है. जैसा कि हमारे पास जो है वो सिग्नल्स एंड नॉइस जो है ना, ये हमारे पास दिया गया है, जिसमें सिग्नल नॉइस प्लस एन, जिसमें हमारे पास इनपुट दी गई है और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिल रही है और ये नॉइस हमारे पास वाइनर फिल्टर में से होके जा रही है जो कि आउटपुट आ रही है. इसकी फाइनल फिल्टर थ्योरी का मतलब यही है कि किसी भी सिग्नल्स को हम उसकी नॉइस को रिमूव करना और उसको फिल्टर करके हमने उसको भेजना होता है. तो हमारे पास ये अडैप्टिव फिल्टर जो होता है ये डीएसपी की वो टाइप है जिसपे हम पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं और उससे हम एरर सिग्नल्स को मिनिमाइज करते हैं. ठीक है, by using algorithm. These filters are designed to change their coefficient automatically respond the statistic characteristic of the input signal, which make them particularly used in environment where the signal properties are non-stationary or unpredictable. So इसके अंदर हमारे पास यही थी. और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कॉमन एल्गोरिथम्स ऑफ एडाप्टिव फिल्टर, जिसमें हमारे पास हैं स्टेप पोस्ट, डिस्टेंट एल्गोरिथम्स, लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम्स एंड रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम्स. तीन हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं एडाप्टिव फिल्टर के. तो हम नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में हम इन चीज़ों इनको डिस्कस करेंगे. स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिथम इज एन इटरेटिव ऑप्टिमाइज्ड मेथड यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन and the constant of adaptive filter. It is used to minimize the mean square error by adapting the filter coefficient in the direction of the negative gradient of the error surface. Least mean square algorithm क्या होता है? The LMS algorithm is a simplified version of the steepest descent algorithm. It's update the filter coefficient iterative to minimize the mean square error using an estimate of the gradients based on their current input and error signal. The update rules for the LMS algorithm is given by the wn plus n minus 1. Recursive least square algorithm क्या होता है? Least RLS square is another adaptive filter method that aims to minimize the weighted least square error between the desired and estimate signal. It uses all the past data to update the filter coefficient and provide faster coverage than the LMS algorithms. तो हमारे पास उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं. एक नॉइस कैंसिलेशन. नॉइस कैंसिलेशंस क्या होती हैं? इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास नॉइस कैंसिलेशन क्या होती है? नॉइस कैंसिलेशन होती है बाय डायनेमिकली एडजस्ट टू चेंज द नॉइस कैरेक्टरिस्टिक. अडैप्टिव फिल्टर कैन इफेक्टिवली कैंसिल आउट अनवांटेड नॉइस फ्रॉम अ सिग्नल. ये अनवांटेड सिग्नल्स को जो है वो कैंसिल कर देती है. उसके बाद हमारे पास सिस्टम मॉडलिंग होता है. सिस्टम मॉडलिंग में होता है हेल्प इन मॉडलिंग एन अननोन सिस्टम बाय एडजस्टिंग द फिल्टर कोएफिशिएंट टू मैच द सिस्टम आउटपुट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन एनहांसमेंट.
लाइन एनहांसमेंट क्या होती है? लाइन एनहांसमेंट में हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें होती है, ये होती है इसके अंदर हम यूज इन टेलीकम्युनिकेशन टू रिमूव द इको फ्रॉम अ वॉइस सिग्नल, इम्प्रूविंग कॉल क्वालिटी। उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, वो है channel equalization. In communication system, adaptive filter can compensate for the distortion caused by the transmission channel. ये हमारे पास थी इसकी टाइप। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी जो है ना, हम अगर इसके बारे में डिस्कस करें इसकी की कंपोनेंट्स ऑफ अडैप्टिव फिल्टर्स के बारे में, तो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी कीज़। तो की कंपोनेंट्स जो होती हैं वो होती हैं फिल्टर स्ट्रक्चर, एरर सिग्नल्स, एडाप्टेशन एल्गोरिथम, लीस्ट मीन स्क्वेयर। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कॉलमैन फिल्टर्स। तो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं फिल्टर स्ट्रक्चर, टाइपिकली एन एडाप्टिव फिल्टर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू स्टैंडर्ड डिजिटल फिल्टर सच एज FIR फिल्टर। उसके बाद इनफाइनाइट फिल्टर आ जाता है। फिर उसके बाद द कोफिशिएंट आर वेरिएबल एंड एडाप्टिव बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। एरर सिग्नल क्या होता है? एरर सिग्नल द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फिल्टर। द सिग्नल गाइड्स द एडाप्टिव प्रोसेस। Adaptation algorithms क्या होती हैं? This algorithm adjusts the filter coefficient to minimize the errors. Error signal common algorithm include least mean square (LMS), recursive least square (RLS), Kalman filters use a probabilistic approach, and it is optimal in the sense of the minimizing the mean of the squared error often used in a more complex and noise environment. So adaptive filter and DSP are powerful tools for dynamically adjust to verifying the signal's conditions. They are built to minimize the error and signal optimize performance through variable algorithms, make them indispensable in many practical applications such as noise reductions, echo cancellation, and system identification. The choice of the adaptation algorithm and filter structure depend upon the basic requirements and constraints of the application at hand. तो मेरे पास अगर देखा जाए तो इसमें एप्लीकेशन दी गई हैं, जिसमें मैंने एप्लीकेशन और कीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें हमें सिग्नल एंड नॉइस दिया गया है ADC, और एक सिग्नल दिया गया है, और फिर उसके अंदर एक एरर सिग्नल जो था वो फिल्टर हुआ है, और इधर से हमारे पास ADC एडाप्टिव फिल्टर और LMS एल्गोरिथम दोनों में से यूज़ हुआ है। तो LMS एल्गोरिथम बेसिकली है क्या? LMS एल्गोरिथम्स होता है, इसकी अगर हम LMS की बात करें तो ये होता है लीस्ट मीन्स के LMS। इसमें से हमारे पास जो DAC एरर सिग्नल होगा वो पास होगा, और जैसे ADC पास होगा। इसमें से हमारे पास फिर जो सिग्नल निकलेगा वो अडैप्टिव फिल्टर में जाएगा, अडैप्टिव फिल्टर से हमारे पास एक्सेप्ट आउटपुट निकलेगी। तो ये थी हमारे पास अडैप्टिव फिल्टर की जो है ना स्लाइड, जिसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया, उसकी कॉमन एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने वाइनर फिल्टर थ्योरी का डिस्कस किया। वाइनर फिल्टर यही होता है जिसमें हम डिज़ायर सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें मीन एरर्स इन द सिग्नल्स को इम्प्रूव करते हैं बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड डिज़ायर सिग्नल। इट इज़ एन ऑप्टिमल filter in the sense of the minimizing mean square, assuming the signals and the noise are the stationary process with non-spectral characteristic. Warren filter provide a growth from the solution that depend upon the correlation function of the signal and noise. So this is the topic of the adaptive filter. Thanks for watching.